Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we will do computer chapter PowerPoint. So let's start with the warm-up of this chapter. In the warm-up, you are given with a ribbon puzzle activity. The class will be divided into two groups. Group 1 will receive cut-out pieces of the PowerPoint ribbon including tabs, groups and icons. Their task is to mix them up and shuffle the order. Group 2 will then take the mixed pieces and work together to arrange them correctly. While arranging, they must discuss and decide where each tab, group or icon belongs. So this is the warm-up activity for you. Now, what is the objective of this chapter? In this chapter, we will learn about formatting text, inserting a text box, inserting shapes, formatting a slide, moving, resizing and deleting placeholders. Now let's read the chapter. In the previous standard, we learnt about PowerPoint 2016. It is an effective tool by Microsoft where we can create amazing presentations with slides. In this chapter, we will explore some advanced features of PowerPoint. This will allow us to present the ideas for school projects in a creative way. तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने PowerPoint 2016 के बारे में पढ़ा था. हमने उसका ओवरव्यू लिया था कि वो कितना इफेक्टिव टूल है जिससे हम अमेजिंग प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट PowerPoint. हम उसके और जो फीचर्स हैं उसमें एडवांस फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिससे कि अगर आपको कभी भी अपने स्कूल के लिए कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप उसको बहुत अच्छे से बना पाएं. सो first of all, we are going to learn how to format text in PowerPoint. Formatting is one of the effective features that let us change the text style, size and color. We can modify the font type, size and color to match the slide's theme or improve readability. So friends, text को format करना यानी कि हम text के टाइप को चेंज करना, उसके साइज को चेंज करना, उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं. तो हम टेक्स्ट को बहुत अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो स्लाइड है वो और अच्छी दिखे. तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में वी विल लर्न अबाउट फॉन्ट टाइप. Applying different font types help to highlight important information. There are over 100 different font types available which can be easily applied. अब फ्रेंड्स, स्लाइड में जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसमें हम हेडिंग को अलग टाइप से लिखना चाहते हैं तो हम उसका एक अलग फॉन्ट टाइप चूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सीख रहे हैं कि कैसे हम ये फॉन्ट टाइप चेंज करें. टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन द स्लाइड, फॉलो बिलो स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेक्ट द टेक्स्ट, go to the home tab and there we have to go to the font group. Click on font drop down option and select the desired type. तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये होम टैब है. इधर हम गए हैं अपने फोंट ग्रुप में. फोंट ग्रुप में यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई देता है जिसमें यू कैन सी मेनी फोन टाइप्स. मोर देन 100 फोन टाइप्स आर अवेलेबल हेयर. तो इसमें से आप टेक्स्ट में जो भी आपको अच्छा लगे वो टेक्स्ट वो टाइप अपने टेक्स्ट का कर सकते हैं. ठीक है, बहुत आसान वे है फ्रेंड्स, बट बहुत इफेक्टिव वे है अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा दिखाने का. Next is font size. To change the text font size, perform the following steps. Select the text, go to the home tab, go to the font group and click on the font size drop down arrow. Select the desired size. अब font type के बाद है font size. Font size कि हम चाहते हैं कि भाई हेडिंग हमारी ज्यादा बड़ी दिखे, जो उसके नीचे का सब हेडिंग है वो उससे छोटा दिखे और जो और टेक्स्ट है वो उससे भी छोटा दिखे, है ना. तो इसके लिए हमें फॉन्ट साइज चूज करना होता है. वो हमें कहाँ मिलेगा? इधर. तो पहले सबसे पहले आपको अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, फिर आपको इधर ड्रॉप डाउन में आना है एंड हेयर यू कैन सी मेनी नंबर्स. तो उन नंबर, वो क्या नंबर है? वो नंबर टेक्स्ट के साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो आप उसको जो भी आपको साइज चाहिए उसे सिलेक्ट कर लीजिए. योर टेक्स्ट विल बी चेंज्ड. साइज उसका चेंज हो जाएगा. नाउ अनदर वे टू डू दिस इज ये इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज. ये जो आपको ए दिखाई दे रहे हैं ना, तो जो बिगर ए है इट इज फॉर इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज एंड द स्मॉलर ए इज फॉर डिक्रीजिंग द फॉन्ट साइज. तो ये भी आप कर सकते हैं. यही चीज यहाँ लिखी है फ्रेंड्स. अनदर वे इज टू change the font size is to select increase font size or decrease font size in the font group. Now next is font case.
It describes the way characters are capitalized within a word or sentence. The various cases in PowerPoint are, तो फॉन्ट केस का मतलब है फ्रेंड्स कि हम अपने टेक्स्ट में कैसे चाहते हैं कि करेक्टर्स कैपिटलाइज हों या कैसे रहें, वो स्मॉल लेटर्स में रहें, जैसे कि कहते हैं ना लोअर केस में, अपर केस में, तो वो सारी चीजें भी हम कर सकते हैं पावर पॉइंट में। लेट्स सी हाउ। देखिए यहाँ पर मैं पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि क्या क्या केसेस अवेलेबल होते हैं। अपर केस वेयर ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल, अपर केस का मतलब कि सारे लेटर्स जो हैं वो सभी कैपिटल में हो। लोअर केस वेयर ऑल लेटर्स आर इन लोअर केस। सेंटेंस केस कैपिटलाइजेस ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं अपनी नोटबुक्स में, क्या करते हैं कि जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर हम कैपिटल लिखते हैं, बाकी सारा सेंटेंस लोअर केस में। तो ये सेंटेंस केस का भी ऑप्शन इधर है। Capitalize each word, capitalizes the first letter of every word in the text। इसका मतलब है कि भाई जो जो जितने भी वर्ड्स हैं उन सबका पहला वाला लेटर कैपिटलाइज हो जाएगा। Toggle case switches the capitalization of each letter, making lower case into upper case and vice versa। Toggle case का मतलब है फ्रेंड्स कि जो हमारा अभी प्रेजेंटली टेक्स्ट है, अगर वो लोअर केस में है तो उसको अपर केस में कर देगा, अगर पहले से ही वो अपर केस में है तो उसको लोअर केस में कर देगा, टॉगल कर देगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि ये कहाँ से हम ये फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स हमें लेने हैं। स्टेप्स टू चेंज फॉन्ट केस आर: सिलेक्ट द टेक्स्ट, go to the home tab, click change case drop down option in the font group। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने ये सीखा था ऊपर, ये फॉन्ट स्टाइल, ये फॉन्ट साइज, और यहाँ पर है ये इसको जो फॉन्ट केस को चेंज करने का, कैपिटल ए और स्मॉल ए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ड्रॉप डाउन को अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, और इन ऑप्शंस को देखते ही फ्रेंड्स हमें समझ में आता है कि इन सब का मतलब क्या है। लोअर केस में देखिए इन्होंने लेटर सारे लोअर केस में लिखे हुए हैं, अपर केस में सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे तो उन्होंने उसी तरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भी आपको जैसा भी केस चाहिए टेक्स्ट का, आप उस ऑप्शन को चूज करिए और वो आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज चेंजिंग अलाइनमेंट। Alignment determines the positioning of text on a slide. We can align it to the left, right, center or justify it to keep the content organized and visually appealing. So alignment का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा टेक्स्ट है स्लाइड में उसको हम कैसे उसको अलाइन करना चाहते हैं, उसकी पोजीशनिंग क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो भी आप इधर टेक्स्ट देख रहे हैं ये सब क्या है, ये लेफ्ट अलाइंड है, लेफ्ट की तरफ अलाइंड है ये। इसी तरह राइट अलाइनमेंट भी हम चूज कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट भी हम चूज कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज लगे और विजुअली अपीलिंग लगे। सो लेट्स सी व्हिच स्टेप्स आर टू बी फॉलोड टू चेंज द अलाइनमेंट। सिलेक्ट द टेक्स्ट। सब में फ्रेंड्स पहले जो भी चीज आपको जिसका भी टेक्स्ट चेंज करना है तो सब में पहला स्टेप तो यही होता है कि उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। देन यू हैव टू गो टू द पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टैब। तो ये होम टैब है, यहाँ पर फ्रेंड्स हमें अब इस ग्रुप में पैराग्राफ ग्रुप में आना है। क्लिक अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट और जस्टिफाई टू चेंज द अलाइनमेंट। अब यहाँ पर आपको ये जो सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, तो आपको जो भी ऑप्शन चाहिए, जैसे कि ये पहला वाला है अलाइन लेफ्ट, ठीक है, फिर है सेंटर, राइट, जस्टिफाई, तो इसमें से आपको जो डिजायर्ड आपका ऑप्शन है, जैसे आप टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं, बस उसको ऑप्शन को चूज करिए एंड योर सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी अलाइंड अकॉर्डिंगली। फाइन। तो ये जो फ्रेंड्स अलाइनमेंट होती है ये पावर पॉइंट में बहुत अच्छा फीचर है, इससे हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है वो काफी विजुअली अपीलिंग हो जाती है। जैसे कि हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रेजेंटेशन को देखकर अट्रैक्ट हों, तो ये काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट। Bullets and numbering in PowerPoint help organize text in a simple, easy to read format. Bullets are used for unordered list, while numbered list show steps or order. So friends, whenever you have to write points in your notebook, what do? You either write 1, 2, 3, 4 before every point, right? Or you put arrows, or you put bullets, or you put stars, or you write A, B, C, D, राइट। तो स्टेप्स को
या ऑर्डर को या ऐसे ही रैंडम पॉइंट्स को लिखने के लिए हम इन सब चीजों का यूज करते हैं। सिमिलरली इन पावर पॉइंट वी आर प्रोवाइडेड विद बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नंबरिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। सो नाउ लेट्स सी कि क्या स्टेप्स वी कैन फॉलो टू अप्लाई दीज बुलेट्स ऑन नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। जो भी सारा टेक्स्ट आपको पॉइंट्स में करना है, आपको उस सारे टेक्स्ट को एक बार सिलेक्ट करना है। Then go to the paragraph group in the home tab. So here friends, home tab में we have to go to the paragraph group. It is the same group जिसमें अभी हम alignment के लिए गए थे. There you will click either on bullets or numbering drop down arrow. दो आपको दिखेंगे, first one is bullet का, second one is of numbering. तो bullets में friends, let me show you. Look here, so many options are available for you. आप जो भी आपको बुलेट अच्छी लग रही है उसे चूज कर सकते हैं। सिमिलरली नंबरिंग के ड्रॉप डाउन में जब उसको आप एरो को क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपको काफी ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये सभी ऑप्शंस दिखाई देंगे। ABCD का भी ऑप्शन है, अल्फाबेट्स का भी ऑप्शन है, रोमन नंबर्स का भी ऑप्शन है। Select the desired type of bullets on numbering from the options. The selected text will be organized in a structured way. जो भी आपको अच्छा लग रहा है, बुलेट यूज करना चाहते हैं, जिस भी टाइप का बुलेट यूज करना चाहते हैं या तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर कोई नंबर यूज करना चाहते हैं, अल्फाबेट यूज करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो ऐसे इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाता है। ओके, तो ये तो फ्रेंड्स ऊपर हमने समझ लिया कि हम कैसे अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल, टू इंक्रीज इट्स रीडेबिलिटी, make it visually appealing. Now next we will learn inserting a text box. A text box is used to add text anywhere on a slide. We can type headings, descriptions or any important information inside it. तो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बॉक्स तो हमें चाहिए ही स्लाइड में काम करने के लिए, है ना? जब भी तो हम अपना टेक्स्ट डाल पाएंगे, ऐड कर पाएंगे टेक्स्ट को। सो लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन PowerPoint. Select the slide where we want to add text. Click on the Insert tab. Click on Text box in the text group. Drag the mouse on the slide to insert text box. So here friends, we have to go to the, सबसे पहले तो डेफिनेटली आपको सिलेक्ट करनी है स्लाइड जहां पर आपको टेक्स्ट डालना है। फिर आपको इंसर्ट टैब में जाना है एंड देयर यू हैव टू गो टू टेक्स्ट बॉक्स। ये देखिए, ये टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, यू हैव टू क्लिक इट। और फिर आपको अपने माउस को ड्रैग करना है, इस तरह खींच के ऐसे ड्रैग करना है और जितना भी आप छोटा बड़ा उसको करना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। Start typing inside it. We can resize the text box by dragging its corners and move it by clicking and dragging. Okay. Now, if we want to insert shapes, how to do that in PowerPoint? Shapes help make slides more creative and attractive. We can use shapes like circles, rectangles, arrows, stars and more to highlight important points or create designs. देखिए फ्रेंड्स, इतनी सारी शेप्स के ऑप्शंस हमें अवेलेबल होते हैं PowerPoint में। तो अगर हमें कुछ भी, जैसे कि कई बार हम कोई ऐसी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जिसमें हमें डायलॉग लिखने हैं, तो डायलॉग के लिए हम यूज करना चाहते हैं कि भाई जो डायलॉग्स हैं वो हम शेप में लिखें, राइट? जैसे कि आपके बुक्स वगैरह में, कॉमिक्स में बबल्स बने होते हैं, कुछ ऐसा। तो ऐसी कोई भी आप शेप यहाँ से चूज कर सकते हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू इंसर्ट अ शेप? क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन शेप्स इन द इलस्ट्रेशंस ग्रुप. A list of different shapes will appear. Click on the required shape. So, to insert shape, we have to go to the Insert tab. Insert tab में Illustrations group में ये shapes का option होता है। उधर जाएंगे तो ये list खुल जाती है different shapes की। Click on the required shape. जो भी आपको shape अच्छी लग रही है, जो आपकी requirement के according है, please choose that shape. Move the mouse on the slide. Click and drag to draw the shape. वही चीज है कि माउस को क्लिक करके माउस को ड्रैग करें अपने टेक्स्ट, अपनी स्लाइड में, और या अगर आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी डालना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और आपकी वो जो शेप है वो ऐड हो जाएगी। एडिंग टेक्स्ट इन शेप्स। नाउ नेक्स्ट इज एडिंग टेक्स्ट इन शेप्स। अब फ्रेंड्स, शेप्स हमने इंसर्ट कर ली है। नाउ हाउ टू ऐड टेक्स्ट इन इट?
We can also add text inside shapes to label them or make the slides more informative. This is useful for creating diagrams, flowcharts or highlighting important points. तो अगर कोई डायग्राम हम क्रिएट कर रहे हैं, फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं, या जैसे कि ऊपर आई टोल्ड यू अबाउट राइटिंग डायलॉग्स, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी. तो कैसे टेक्स्ट कैसे लिखेंगे उसमें? लेट्स सी. स्टेप्स टू ऐड टेक्स्ट इन अ शेप. सिलेक्ट द शेप, right click on the shape and select edit text from the menu. A text box will appear. Start typing in the text box. It's quite easy. जिस भी शेप में आपने टेक्स्ट लिखना है, you have to select that shape. राइट क्लिक करिए. ये देखिए ऑप्शन आ जाता है एडिट टेक्स्ट का. तो जब हम इसको क्लिक करते हैं तो एक टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होता है और उस टेक्स्ट बॉक्स में फ्रेंड्स यू कैन टाइप योर टेक्स्ट. We can also change the font, size and color using the home tab. We can resize the shape to fit the text properly. Now next is applying effects to shapes. We can apply various effects to shapes to enhance them. We can add shadows, glow, reflections and 3D effects to improve the slide design. अब फ्रेंड्स शेप्स तो हमने इंसर्ट कर ली, पर हम उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं शेप को, तो उसके ऊपर हम इफेक्ट्स लगा सकते हैं. वो शेडो इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, ग्लो है, रिफ्लेक्ट भी करवा सकते हैं और 3D इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं हम शेप्स में. सो स्टेप्स टू अप्लाई इफेक्ट्स टू शेप्स आर: क्लिक ऑन द शेप टू सिलेक्ट इट. तो सबसे पहले शेप को सिलेक्ट कर लीजिए. गो टू द शेप फॉर्मेट टैब, क्लिक ऑन शेप इफेक्ट्स इन द शेप स्टाइल्स ग्रुप. देन यू हैव टू गो टू द शेप फॉर्मेट टैब. ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट टैब खुल जाता है और इसमें हमने ये शेप इफेक्ट्स हैं इधर, इसको चूज करना है. और जब इसको हम क्लिक करते हैं, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स विद डिफरेंट इफेक्ट्स लाइक शेडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन, बेवल एंड 3D रोटेशन. ये देखिए सारे ऑप्शंस हैं इधर. सो क्लिक ऑन द डिजायर्ड इफेक्ट एंड इट विल बी अप्लाइड टू द शेप. जो भी हमें इफेक्ट अच्छा लग रहा है हम उसको क्लिक करेंगे और वो इफेक्ट शेप पर अप्लाई हो जाएगा. उधर आगे भी फ्रेंड्स देखिए कितने ऑप्शंस हैं. फ्रेंड्स whatever we are studying right now, you have to use it practically while working on your computer or laptop. Then only you will be able to understand these things in a better way. So please do try it. So I have told you about how to apply effect to the shape. Now next is inserting tables in PowerPoint. A table in PowerPoint helps organize information in rows and columns. तो फ्रेंड्स टेबल की इंपॉर्टेंस हमें पता है कि टेबल जो होती है उससे हम अपने डेटा को ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट कर सकते हैं. तो पावर पॉइंट में हम पावर पॉइंट का तो उसमें कोई एक्सेल की तरह कोई रोज और कॉलम्स तो होते नहीं है, तो पावर पॉइंट में तो टेबल्स और भी हेल्पफुल होती हैं. इट मेक्स डेटा इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड. We can use tables to show comparison, schedules or important facts in a structured way. Especially जब comparison के लिए हम tables को use करते हैं PowerPoint में. So what are the steps to insert a table? Select the slide where we want to insert a table. Click on the Insert tab. In the Tables group, click on Table. A small grid will appear. Move the mouse to select the number of rows and columns we need. Click to insert. A table will appear on the slide. Click inside any cell to start typing. So friends, to insert a table, you have to go to the Insert tab और वहां पर we have to go to Tables group. Tables group में फ्रेंड्स ये टेबल को जब हम क्लिक करेंगे तो ऐसा एक ग्रिड सा आ जाता है. तो जितने भी हमें रोज और कॉलम्स चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम इधर सिलेक्ट कर सकते हैं एंड दैट टेबल विल बी इंसर्टेड टू आवर स्लाइड और फिर हम उसमें टाइप कर सकते हैं. If we want a particular number of rows and columns, instead of selecting from the grid, click on Insert Table. A dialog box will appear. Enter the number of columns and rows we need. Click OK. तो फ्रेंड्स अगर हम ऐसे सिलेक्शन नहीं करना चाहते तो ये देखिए ये इंसर्ट टेबल इधर ऑप्शन आता है. जब हम इधर गए ना ये टेबल पे तो ये देखिए ये इंसर्ट टेबल ऑप्शन आता है, तो इसको क्लिक करेंगे फ्रेंड्स हम, तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि हमें कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए और कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए. तो उसके हम यहाँ पर उन नंबर्स को फिल कर सकते हैं और हमारी उतनी ही टेबल बन के आ जाती है. सो दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट अ टेबल इन PowerPoint. नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग अ स्लाइड.
Formatting a slide refers to modifying the look of a slide in a presentation to improve its appearance and organization. Good slide formatting helps make the presentation clearer. To format a slide, we can add following features. So friends, till now we were understanding about how to format a text. अब स्लाइड को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं हम वो सीखेंगे. स्लाइड को हम इसलिए फॉर्मेट करना चाहते हैं जिससे कि जो हमारी स्लाइड है हम उसके पीछे का बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर पाए, उसकी जो अपीयरेंस है उसे इम्प्रूव कर पाए. सो क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम कर सकते हैं ये आइए समझते हैं. फर्स्ट इज सॉलिड फिल. Solid fill in PowerPoint is a feature that allows us to fill a slide background with a single color. Solid fill applies one color evenly across the selected area. It is useful for creating clear and bold designs where we want a consistent color. We can choose any color and even adjust the transparency to suit the design needs, making elements stand out with simplicity and clarity. तो सॉलिड फिल पावर पॉइंट में फ्रेंड्स वो फीचर होता है जिसकी मदद से हम जो स्लाइड का बैकग्राउंड है उसको सिंगल कलर से फिल कर सकते हैं. इससे जो होता है कि भाई हमारा जो स्लाइड है वो बहुत सुंदर दिखाई देती है. तो आइए देखते हैं हाउ टू डू दिस. Click on the design tab, select format background or we can just right click on the slide and select format background option. So here friends we have to go to the design tab. ये design tab है, इसमें ये फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन है. इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये सारे खुल जाता है ऐसी विंडो. या आप क्या दूसरा ऑप्शन है कि आप स्लाइड पर जाके राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखाई देगा. फ्रॉम द फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन सिलेक्ट द सॉलिड फिल ऑप्शन. तो ये सॉलिड फिल का ऑप्शन आप चूज करेंगे. इधर चूज एनी कलर, वी कैन एडजस्ट द ट्रांसपेरेंसी विद द ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन. जब सॉलिड फिल का फ्रेंड्स हम ये चूज करेंगे तो हमें वो कलर के ऑप्शंस देगा कि क्या क्या कलर आपको अवेलेबल है. उसमें से हम कोई कलर चूज कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हैं. ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन होता है इधर. देन नेक्स्ट इज ग्रेडियंट फिल. अब ग्रेडियंट फिल अगर हम चाहते हैं कि भाई सिंगल कलर ना हो और कुछ ब्लेंड हो जाए दो तीन कलर्स का, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट फिल. Gradient fill in PowerPoint is used to color the background with a blend of two or more colors that transition smoothly from one to another. Instead of using solid color, a gradient fill lets the colors gradually change from one to another. We can control how the colors blend, the direction of the gradient, and how soft or sharp the transitions are. So जैसे कि friends I told you कि instead of using a solid fill as a background of our slide, we can also use a blend, a combination of two or more colors. और उनमें जो transition होती है वो भी बहुत smoothly होती है using gradient fill. और इसमें हम बहुत चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं. दैट हाउ द कलर्स विल ब्लेंड, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए उनके ग्रेडियंट की, कितना सॉफ्ट और कितना शार्प होनी चाहिए ट्रांजिशन, ये सभी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं. Imagine we want the background of a slide to look like the sky at sunset. We can use a gradient fill starting with orange at the top and gradually blending into blue at the bottom. This creates a smooth transition between the three colors, making the slide look more colorful and interesting, just like a sunset sky. So let's see कि अगर हमें अपने बैकग्राउंड जो स्लाइड का बैकग्राउंड है उसको रिजेंबल करना है एज द कलर ऑफ द स्काई एट सनसेट, तो वो कैसे करेंगे हम. टू अप्लाई सनसेट ग्रेडियंट फॉलो द बिलो स्टेप्स. क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, select format background or we can just right click on the slide and select format background option. तो अभी जैसे कि ऊपर हमने solid fill में हमने देखा था that first of all हमें design tab में जाना है, thereafter we will go to format background. Now from the format background pane select the gradient fill option. अब यहाँ पे friends we have to select this gradient fill. Instead of solid fill we will select gradient fill. After that we will choose orange for the first color stop, yellow for second and blue for the last color stop to create the sunset effect. Here you can see gradient stops. Usually इसमें friends 4 stops होते हैं, हम उसको increase और decrease कर सकते हैं as per our requirement. यहाँ पर to create effect of sky at the sunset we have to use 3 colors. पहले stop में हमने कौन सा orange select करा, then second में हमने yellow और third में हमने blue use करा है.
नाउ वी कैन सेट द ग्रेडियंट डायरेक्शन टू लीनियर डाउन। इधर देखिए ये जो टाइप है ये बताता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ग्रेडियंट की डायरेक्शन, तो उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं एज लीनियर डाउन। हेयर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये टाइप होता है, तो इधर हमने लीनियर सिलेक्ट करा हुआ है एंड इन द डायरेक्शन इफ यू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन यू विल गेट मेनी ऑप्शंस, वन ऑफ देम इज लीनियर डाउन, अदर कैन बी लीनियर लेफ्ट, लीनियर राइट, तो ऐसे करके काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो जब हमने ये सेट कर दिया फ्रेंड्स तो देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है स्लाइड का वो इस तरह चेंज हो जाता है। डजंट इट लुक ब्यूटीफुल? यस, सो यू कैन ट्राई इट आउट। नाउ हियर इज द टास्क कॉर्नर फॉर यू। क्रिएट एन ओशन वेव बैकग्राउंड यूजिंग ग्रेडियंट फिल इन पावर पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये दो स्टेप्स यहाँ पे आपको गिवन है, आपको एक ओशन वेव बैकग्राउंड बनाना है यूजिंग ग्रेडियंट फिल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पिक्चर और टेक्सचर फिल। Picture or texture fill in PowerPoint allows us to fill the background with an image or texture instead of a single color. We can select from pre-made textures such as wood or fabric or use our own image like a photo to give the slide a more unique look. अब फ्रेंड्स अगर आप स्लाइड के बैकग्राउंड को कोई कलर ना देकर कोई टेक्सचर देना चाहते हैं या कोई इमेज यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हम प्री मेड टेक्सचर्स भी यूज कर सकते हैं या अपनी अगर इमेजेस फोटोज वगैरह बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं दैट कैन ऑल्सो बी डन। लेट्स सी हाउ। टू अप्लाई पिक्चर और टेक्सचर फिल फॉलो द गिवन स्टेप्स। राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड सिलेक्ट फॉर्मेट बैकग्राउंड। Click on picture or texture fill option. To use a picture, click insert and select a picture from the computer. To use a texture, click the drop down under texture and choose a built-in texture like wood or fabric. So again you have to go to the format background. अब उसमें सॉलिड फिल भी आता है, ग्रेडियंट फिल भी आता है और उसके नीचे आता है ये पिक्चर और टेक्सचर फिल का ऑप्शन। अगर हमें कोई पिक्चर यानी इमेज ऐड करनी है बैकग्राउंड में अपनी स्लाइड के तो हम इंसर्ट में जाएंगे वहां पर और जो भी पिक्चर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इफ यू वांट टू यूज अ टेक्सचर लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आपको उधर जाना है टेक्सचर में। टेक्सचर में फ्रेंड्स यू विल गेट दीज मेनी टेक्सचर ऑप्शंस, बहुत सारे हैं एंड दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता हो उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए और आपका जो बैकग्राउंड है स्लाइड का वो चेंज होके ऐसा बन जाएगा, जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग, रीसाइजिंग एंड डिलीटिंग प्लेस होल्डर। तो फ्रेंड्स अब हमने फॉर्मेटिंग देख ली है कि कैसे हम पावर पॉइंट में हम अपनी स्लाइड्स को और सुंदर बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि प्लेस होल्डर्स को हम कैसे मूव करें, रीसाइज करें और डिलीट करें। फर्स्ट इज मूविंग प्लेस होल्डर्स। Placeholders are the boxes in PowerPoint slides for adding text, pictures, or other content. We can move them around the slide to change their position. सो फ्रेंड्स प्लेस होल्डर्स ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ये पावर पॉइंट में एक बॉक्सेस होते हैं जिनमें हम टेक्स्ट, पिक्चर्स या कुछ भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जो हमने लेआउट्स देखे थे तो उनमें ये पहले से ही आते हैं, ये प्लेस होल्डर्स उसमें बने हुए होते हैं। तो अगर हम उनको मूव करना चाहें, प्लेस होल्डर्स को उनकी पोजिशन चेंज करना चाहें तो व्हाट आर द स्टेप्स टू डू दैट? क्लिक ऑन द प्लेस होल्डर वी वांट टू मूव, hover over the border until the cursor changes to a four-sided arrow. Click and hold the mouse button, then drag the placeholder to the new spot on the slide. Whatever placeholder we want to move, हमें उसको क्लिक करना है और उसके बॉर्डर पर जाके जब हम थोड़ा सा कर्सर इधर उधर करते हैं तो वो कर्सर जो है फ्रेंड्स वो चेंज हो जाता है एज फोर साइडेड एरो। बस उसको आपने क्लिक करना है, अपना माउस बटन को होल्ड करके रखना है एंड देन यू कैन ड्रैग द प्लेस होल्डर टू द न्यू स्पॉट जहां पर भी आप उसको प्लेस करना चाहते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन मूव प्लेस होल्डर्स इन अ पावरपॉइंट स्लाइड। Next is resizing placeholders. Resizing placeholders let us change their size to fit the content better. We can make them bigger or smaller as needed. तो फ्रेंड्स हम प्लेस होल्डर्स को देखिए, दीज आर द प्लेस होल्डर्स, वी कैन ऑल्सो रीसाइज देम। अभी ऊपर वी लर्न हाउ टू मूव देम। नाउ अगर उनको हमें रीसाइज करना है, वी वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज देयर साइज, वी कैन डू दैट ऑल्सो। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू रीसाइज अ प्लेस होल्डर? Click on the placeholder we want to resize. First of all, you have to click on that placeholder which you want to resize.
Then small circles handles will appear on the corner and sides. तो ये देखिए ये small circles आ गए ना ये. तो इनको क्लिक करके you have to hold one of the corner handles, then drag it in or out to change the size while keeping its shape. Use the side handles to change the width or height. तो इनकी मदद से फ्रेंड्स ये जो हैंडल्स आ गए हैं आपको उनको ड्रैग करना है, और अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो उनको अंदर की तरफ ड्रैग करिए, अगर आप उनको बड़ा करना चाहते हैं प्लेस होल्डर को तो उनको बाहर ये हैंडल्स को बाहर की तरफ ड्रैग करिए. ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप प्लेस होल्डर्स के साइज को चेंज कर सकते हैं. यू कैन रीसाइज प्लेस होल्डर्स. Now our last topic is deleting placeholders. If we do not need a placeholder anymore, we can remove it from the slide to keep the design neat. Steps to delete a placeholder. Click on the placeholder to be deleted. Press the delete key on the keyboard. इफ यू वांट कि भाई हमें ये जो पर्टिकुलर प्लेस होल्डर है ये नहीं चाहिए तो हम उसको कैसे डिलीट करेंगे. वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस प्लेस होल्डर एंड वील जस्ट प्रेस द डिलीट की. जो डिलीट की है कीबोर्ड पे उसको प्रेस कर देंगे. सो दिस सिलेक्टेड प्लेस होल्डर विल बी डिलीटेड. ओके, so friends, this was our chapter PowerPoint, in which we learnt about the advanced features of PowerPoint, where we learnt about how to format the text, how to format the slide, inserting shapes, and right, और कैसे अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड को हम कलर कर सकते हैं यूजिंग सॉलिड फिल एंड ग्रेडियंट फिल. एंड ऑल दीज फीचर्स डेफिनेटली हेल्प अस टू मेक आवर PowerPoint slides more beautiful and more catchy. So friends, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.